جو ہے کنٹینیو رکھوں گی تاکہ Start. آپ کا ہونا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ محمد زین العابدین اور ہمارے ساتھ آج ہیں مس لبنہ میر. جیسے کہ ہم ملواتے ہیں آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت لوگوں سے، بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے، بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں سے. اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ ہیں مس لبنہ میر، اور وہ بہت زیادہ لائک ایجوکیشن سسٹم سے وابستہ ہیں، اور بہت زیادہ وہ لائک سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں. خاص طور پر وہ سکھاتی ہیں، ٹیچرس کو سکھاتی ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو سنبھالنا ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو لائک جس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے اور کس چیز کو پورا نہیں کرنا. سو لیٹس ٹاک ود مس لبنہ میر. سو السلام علیکم مس لبنہ میر. وعلیکم السلام زین. ویلکم ٹو دا الحمدللہ. شو. الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے یہ مجھے اپنی شو میں انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اچھا لگتا ہے جب یوتھ جو ہے وہ ایسے پلیٹ فارم سے اور ایسی جگہوں سے جو ہے وہ لوگوں کو انگیج کرتی ہے جہاں پر آپ کہہ لیں کہ دس از دا اونلی آپشن. اور اس میں جو ہے پھر یس اسی انٹرویوز ایک تو کہہ لیں کہ بس وہ کہہ لیں کہ بہانہ ہے، لیکن اٹس اے پارٹ آف لرننگ. آپ سیکھتے ہیں اور پھر آپ سکھاتے ہیں، تو آپ دونوں جو بالکل ہے وہ سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو ابھی مل نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ لائیو جو ہے وہ ٹریننگ نہیں کر سکتے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شوز کے ذریعے ہی سیکھ لیتے ہیں، جن میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. تو جی میں بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ جیسے جو لوگ ہیں، جیسے جو ینگسٹرس ہیں، وہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تھینک یو کیونکہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے جب اتنی کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کا تھوڑا، اب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ کوارنٹائن میں گھر پہ ہیں تو سب فری ہے. ایسا نہیں ہے. اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو کہہ لیں کہ ٹیچرس ہیں یا ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ کہہ لیں کہ بہت مشکل سے ٹائم ہم لوگ نکالتے ہیں. یہ ہم بتاتے نہیں ہیں لیکن ہے، ہمارے پاس بھی ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، لیکن ہم ہم انکریج کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی نے انکریج کیا تھا، بالکل کسی نے ہمارا ہاتھ تھاما تھا، ہمیں جو ہے وہ اوپر لے کر آئے تھے. ہمیں جو ہے ہم جب گر گئے تھے کہیں، ہمیں جو ہے ہم کہیں ہماری شارٹ کمنگس تھی، ہمارے ٹیچرس تھے، ہمارے ارد گرد لوگ تھے، ایکسپیرینس لوگ تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ آ جائیں، آپ یہ کر لیں، اچھا آپ یہ کر کے دیکھیں، اچھا یہ چیزیں ہیں. تو میں بھی انکریج کرتی ہوں اینڈ دس از وائی آئی ایم ہیئر. بہت سارے شوز کی جو ہے نا آفرز آتی ہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں آپ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپروچ آپ جب کرتے ہیں تو میں ان کو نہ نہیں کر سکتی. کم ٹائم تھا اوکے. لیکن تھینک میں یو. نے کوشش میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے وہ اس چھوٹے سے ٹائم میں بھی آپ لوگوں کو وہ چیز بتا سکوں کہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک گلاس پانی ہو تو آپ اس نے ایک گلاس پانی سے آپ نے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. آپ اس سے نہا نہیں سکتے، آپ اس سے یس منہ نہیں دھو سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تو اتنی ملٹی ٹاسک نہیں کر بالکل. سکتے. 40 منٹس ہیں اور 35 to 30 منٹس ہیں. ایک دفعہ ہم ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، بڑا شہر ہے، بالکل بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی بالکل. باتیں ہوتی رہتی ہیں. اوکے. میں اپنا انٹروڈکشن ایگزیکٹلی. بس ایک لائیو کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ میں بتا دیتی ہوں کہ more than 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے میرے پاس ٹیچنگ کا. بالکل بالکل. پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں نے پڑھایا ہے. ایز اے پرائمری ٹیچر میں نے اپنا کریئر جو ہے اسٹارٹ کیا تھا. پری پرائمری آپ کہہ لیں کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے پڑھانے کے لیے دے دیے گئے تھے کہ چلیں جی یہ آپ پڑھا لیں. اور اس کے بعد جو ہے کہہ لیں کہ ابھی بھی لائف میں اتنا سیکھنے کے بعد مجھے اپنا جو پہلا سال ہے پڑھانے والا، جس میں کہ میں خود اس وقت اسٹوڈنٹ تھی گریجویٹ کی، تو مجھے جو ہے وہ جو 3 سال کے 4 سال کے بچے ہیں ان کو پڑھانے والا وہ پورا سال جو ہے نا جو میں نے پڑھایا مجھے آج بھی یاد ہے. آج بھی میں اس ایک کلاس سے بہت کچھ میں سیکھتی ہوں. اور میں جب بھی کبھی کہہ لیں کہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتی ہوں، ڈپریسڈ ہوتی ہوں، اسٹریس میں ہوتی ہوں، میں اسی سال میں چلی جاتی ہوں، وہ اسی کلاس میں ان بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہوں. ابھی ظاہر ہے وہ بچے بہت بڑے ہو گڈ. گئے ہوں گے،
हाँ अभी वो 20-25 साल के होंगे, उनके आगे से बच्चे होंगे, लेकिन ये कि मुझे वो साल बहुत अभी भी याद है। तो उसके बाद कह लें कि एज ए कंसल्टेंट भी जॉब की है, एज ए ईसी कह लें एक्सपर्ट भी मैंने जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। एज ए टीचर ट्रेनर मैंने साइकोलॉजी मेरा जो है स्पेशलिटी रही है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब जब मैंने ये सारे टेन्योर में जो एक चीज़ महसूस की वो ये था कि टीचर एजुकेशन में हम जो चीज़ें समझते हैं उसमें मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। और दूसरी जो चीज़ है एक वो है कि हमने जो टीचर एजुकेशन है हम उसको ये समझते हैं कि इसको सिर्फ ट्रेनिंग के साथ आप नथी कर दें, ऐसा नहीं है। मैंने फिर अपने मास्टर जब मैंने व्हेन आई डिड माय मास्टर्स मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रिसर्च की तरफ, और रिसर्च के बाद फिर मैंने जो है अभी तक जो है कह लें कि मैंने अपने अभी तक 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी कोशिश है कि मैं अपना 3rd पेपर जो है रिसर्च पेपर में वो प्रेजेंट करूं। अभी मैं आपको ये जो आज का टॉपिक है, हाँ इंशाल्लाह, अभी जो है हम लोग जो स्पेसिफिकली फील्ड है मेरी वो टीचर एजुकेशन है। वो इस वजह से है कि इसमें आपने देखा होगा कि टीचर्स के साथ क्योंकि मैं खुद टीचर रही, टीचर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जैक्टली मिस लोकना, मिस लुब्ना मैं आपसे बिल्कुल, मेरा टॉपिक भी जैसे कि ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में और हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में जो चीज़ें जो एलिमेंट्स मिसिंग हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसी के बारे में आप बताइएगा हमारे उन टीचर्स को, उन असातिज़ाओं को कि क्या उनके अंदर जो है एलिमेंट्स की कमी है, कि क्या उनमें ट्रेन होने में क्या चीज़ उनके अंदर जो है वो कमी रह गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो उसके बारे में ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे असातिज़ा को, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग, खुसूसन जो हमारा पेज डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान है, इस पेज तवस्सुत से बल्तिस्तान के जो लोग हैं नॉर्थ साइड के, वो लोग देखेंगे, उनके टीचर्स, जितने भी टीचर्स ये सारे आपको देखेंगे, उन सब के लिए आप बताइए कि हाउ कैन यू नो लाइक आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को लाइक रह सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्या स्टूडेंट्स की साइकी होती है, किस किस मौके पे क्या क्या होता है। सो ये सब जरा डिस्कस कीजिएगा, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कीजिएगा, ताकि जो हमारे टीचर्स यूथ है, हमारे टीचर्स जो हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सके और इस चीज को आगे इसको फैला सकें। सो प्लीज। ठीक है, मैंने भी इन्हीं पॉइंट्स पर आज बात करनी है कि हम जो है ना टीचर, जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर ली है या मास्टर्स आपने सोचा है कि आपने मास्टर्स करना है, आपने अपनी तालीम को सपोर्ट भी करना है और अपने घर को भी सपोर्ट करना है। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, उनके पास अगर बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है या वो जो है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहती हैं, या आप कह लें कि एक ऐसा घराना जो कि अपनी खवातीन को बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं देता, तो ओनली ऑप्शन इज टीचिंग। वो ये समझते हैं कि उनके करीब जो मोहल्ले का या एरिया का जो स्कूल है वहाँ पर अगर कोई लड़की पढ़ाने के लिए चली जाती है तो वो जॉब एक्सेप्टेबल है। ये हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक कह लें ड्रॉबैक है कि हमने सिर्फ इस प्रोफेशन को बाय चांस एक प्रोफेशन रख दिया है कि चलें जी अब कुछ नहीं है करने को तो आप जो है पढ़ाने के लिए चले जाएं। लेकिन देखें डे बाय डे जो कंडीशंस और जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसकी वजह से टीचिंग प्रोफेशन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। इसमें जो है डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और आप कह लें कि आपके पास जो इसकी जो कह लें कि स्पेशलिटी होती है एक प्रोफेशन की, जो उसको अपग्रेड रखती है, जो उसको एक कह लें कि लाइन एंड लेंथ देती है, वो नहीं है। अब ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में आप ये समझते हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ एक कंटेंट बेस होनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिकम पार्ट आप पहले कम रखते थे, अब थोड़ा सा कहीं ज़्यादा होने लगा है, फिर भी वो उतना नहीं है। अब ये होता है कि आपने अगर जो कह लें कि पहले बीएड आपका 2 से 2.5 साल का, फिर उसके बाद एमएड, इसके अलावा आप टीचर्स की एजुकेशन को या टीचर्स ट्रेनिंग को फोकस नहीं करते थे। जब से नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं 20 से 25 साल में, अर्ली ईयर्स की एजुकेशन जो है वो फोकस होना शुरू हुई है, तो आपने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट
लेवल की जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी है। फिर इसमें आपने और स्पेसिफिकली आपने जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग का रखा है कि मॉन्टेसरी बहुत छोटे बच्चों का, बहुत ही यंगस्टर्स का आप कह लें कि उन बच्चों को जो है वो अगर जो है मॉडरेट लेवल पर अगर पढ़ाया जाए तो उसके लिए आप मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का एक कोर्सेज रखे हैं, वो स्पेसिफाइड है, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के जो है ना एज ग्रुप के बच्चों को जो है ना वो डील कर रही होती है। अब मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि आपने जो है ये कोर्सेज डेवलप कर दिए, आपने जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग के कंटेंट बना दिए, आपने एजुकेशन पॉलिसीज बना दी कि ये जो है टीचर्स ट्रेनिंग में इतना रखा जाएगा और इतना आपने काम करना है। मसला वहाँ पर आता है कि जब आपने उसमें टीचर्स का जो है ना अपना एक, क्योंकि वो इंडिविजुअल भी है, उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोसाइटी में रहता है, उसके पास उसके कंधों पर और जिम्मेदारियां भी हैं। वो अगर मैंने जैसे बताया कि मोस्टली जो है वो, वैसे तो इसमें कहने के मेल फीमेल का कोई हमने ऐसा हमारे मैं इसके डाटा की बात नहीं करूंगी कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा है मेल कम है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में आपने डिवाइड कर दिया, फिर उसमें आपने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का कर दिया, फिर आपका कह लें कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया आ गया। तो सब में जो है ना प्रॉब्लम्स हर एक लेवल पर डिफरेंट है। लेकिन अगर आप टीचर एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो है एक लेवल होता है ना, एक मॉन्टेसरी या आप कह लें प्री प्राइमरी लेवल है, ईसी सेटअप है, फिर उसके बाद प्राइमरी लेवल है, फिर उसके बाद आप कह लें सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है। तो हर लेवल की अपनी एक जो है अपनी प्रॉब्लम्स हैं और अपनी जो है वो कह लें कि उसकी जो है उसकी डिमांड्स हैं। अब उसमें क्या आता है कि आपने जो है फोकस किस चीज पे करते हैं कि आपने टीचर्स को जो है वो सिखाना है। सिखाना क्या है? सिर्फ कंटेंट। प्रैक्टिकम पार्ट आपने जो है वो कितना रखा है, कैसे रखा है, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी कोई सच प्लानिंग नहीं होती है, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अभी देख लें को बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, मेरी अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि हमने जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग जो है कह लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो रखे गए थे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। हम लोग बताते रहते थे, बार बार मार्केटिंग करते रहते थे कि इतने से इतने एज ग्रुप के लोग जो है वो आए और टीचर्स ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, स्पेशली टीचर वो फीमेल बच्चियों को, कि आप जो है वो आए और उन्होंने इंटर किया हुआ हो, 18 साल उनकी एज हो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से था। अब यकीन माने कि उसमें जो है इनरोल होने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो है ना उसके स्टाइपेंड भी मिल रहे हैं, आप जो है आए इनरोल हो, आप ये सीखें। यकीन माने बहुत सारे लोग जो हैं वो इनरोल ही नहीं होते थे, या इनरोल हो गए हैं तो उन्हें मालूम था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो शुरू में अगर आपकी जो है ना वो तादाद 60 है तो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सेशन ये तादाद जो है वो हाफ भी नहीं रहती। अब उसमें जो हाफ स्टूडेंट्स जो है ना वो बीच में से क्विट कर गए, किसी रीजन की वजह से छोड़ गए। अब जिन लोगों ने कर लिया है वो ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो उनको जो है हेल्पिंग हैंड था, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोवाइड की गई सहूलत थी, उससे फायदा उठाना था। अब आप जो है वो आपके हाथ में एक वो डिग्री है या एक डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, आपने इसको यूटिलाइज करना है। अब आप ये मत सोचें कि इसको जो है आपको कोई बहुत हाईली पैकेज पर आपको मिलेगा तो फिर आप स्कूल में इनरोल हो जाएंगे, आप स्कूल में आप चले जाएंगे। आप अपना एक सेटअप बना सकते हैं, आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये है। हमने टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत सारी कंटेंट जो है ना आप कह लें कि हम मिस भी कर देते हैं। अगर टीचर्स के पास जो है वो कह लें कि ट्रेनिंग आ जाती है तो हम उसमें एलिमेंट जो मिस करते हैं, स्पेशली ईसी सेटअप की मैं बात करूंगी, उसमें हम टीचर्स का कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस कम करते हैं। हम उनको ये तो सिखा रहे होते हैं कि बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और आपने इसको कैसे फोकस करना है, ईसी सेटअप के बच्चों को कैसे डील करना है, मगर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता है कि टीचर की मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वहां पर फोकस नहीं किया जाता है। अब ये जो सारे इस तरह के मसाइल आते हैं, इसी तरह सेकेंडरी लेवल पर हैं टीचर्स के मसाइल।
अब हम समझते हैं कि टीचर के जो मसाइल है उसका सिर्फ एक हल है कि आप उसको जो है उसकी सैलरी अच्छी हो, उसको सैलरी टाइम से मिल जाए। मतलब आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अलावा और किस तरफ जाता ही नहीं है आपका ध्यान। आपको जो है ना फोकस करना होता है कि एक टीचर्स जो है वो अगर क्लास में 20 से 25 लोगों को डील कर रही है तो उसका मेंटल, उसकी जो है ना जो है ज़हनी सेहत वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेस में है, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर इदारा या उसके इर्द गिर्द के लोग उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग के साथ, इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ वो अपना लेसन डिलीवर नहीं कर सकेगी। जब वो लेसन ही नहीं डिलीवर करी है तो एक दिन चले खराब हो गया, एक हफ्ता खराब हो जाए, एक पूरा महीना अगर वो फोकस नहीं कर पा रही है तो आप उसको कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आप उसको कहाँ पर जो है वो खड़ा देख रहे हैं। देयर इज नो प्लेस। इस तरह से टीचर्स के मसाइल हैं। अभी जो है आज ही मैंने एक वीडियो जो है अपने स्टेटस पर भी जो है वो इसको मैंने शेयर किया है कि मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स और वो जो टीचर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, उनकी टीचर ने जो है वो गिला करते हुए बताया कि जो उनके जो है ऑनलाइन क्लासेस का आपने वहाँ पर अपर लेवल पर एक डिसीजन लिया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस में आपने जो उसके साथ एक वो एक कह लेना कि हर उसकी कोई भी पैकेज आ रहा हो, कोई प्रोग्राम आ रहा हो, तो उसके साथ एक लिस्ट आती है इंस्ट्रक्शंस की, आपने इसको इस तरह से करना है, आपने इस तरह से करना है, आपने ये चीज़ें आपके पास हैं। तो आपने प्लानिंग कोई की है, कोई प्लानिंग नहीं दी गई है। टीचर्स को कहीं से जो है वो कह लें हेल्प आउट नहीं किया गया है। आपने जो है ये श्योरिटी ही नहीं ली है कि क्या वो तमाम की तमाम टीचर्स जो कि लोअर मिडिल क्लास से हैं या जो मिडिल क्लास से हैं, उनके पास गैजेट्स होंगे, उनके पास वाईफाई कनेक्शन होगा, क्या वो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फेमिलियर है उससे कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। अब ऑनलाइन क्लासेस में जब भी वो इतनी कम कैपेसिटी, इतनी कम रिसोर्सेज के साथ, इसके बावजूद वो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं। उसमें क्या आता है, जब आपके पास एक लिंक आ गया और आपने ऑनलाइन क्लास एक बच्चे को करवा दी, अब पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज आ रहे होते हैं कि जी आप जो है आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, आपकी जो है ना लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम थी, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी, ये चीज़ें। अब देखिए कम रिसोर्सेज के साथ भी टीचर अगर आपके जो है ना बच्चे की एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है, उसको किसी तरह से जो है वो मैनेज किया जा रहा है, तो पेरेंट्स की तरफ से कॉपरेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से कॉपरेशन नहीं है कि जो है चूंकि हमारी पास बिल्डिंग के या उनके जो ज़्यादातर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि हमने जो है वो बिल्डिंग का जो है वो किराया भी देना है, हमारे पास यूटिलिटी बिल्स भी हैं और इतना सारा कुछ है, हम मेंटेन नहीं कर सकते। या तो आप जो है ये कम या कटिंग के साथ आप उनकी सैलरी डिडक्ट करके दे रहे हैं, या आप उनको दे नहीं रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि सॉरी जब स्कूल रीओपन होंगे तो आप फिर से पढ़ाने के लिए आ जाएगा। अभी भी टीचर वो कहाँ जाए। इसी तरह से जो है वो टीचर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उसका नहीं कर रहे। अब अगर आपने टीचर्स ट्रेनिंग में जो टीचर एजुकेशन है, टीचर्स ट्रेनिंग में इस तरह की चीजें शामिल नहीं की कि जिसमें टीचर को हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, तो फिर आप देखें कि ये चीज ये मिसिंग एलिमेंट है। अच्छा, टीचर्स को आपने अगर ट्रेनिंग दे दी है, अगर उसने जो है बीएड कर लिया है, बीएड कह लें एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ओवरऑल आप कह लें कि टीचर्स ट्रेनिंग कहलाती है कि आप जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उसमें आप प्राइमरी लेवल तक ग्रेड 5 तक हर तरह का सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। अब उसमें क्या आता है कि आपके पास जो इसी सेटअप के लोग हैं, आई थिंक आइसक्रीम वाला गुजरा है, कोई बात नहीं। अच्छा, यही वाले प्रॉब्लम्स जो है वो टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं। देखिए मेरे पास अगर जो है वो सहूलत है कि मैं एक अलग कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा जो है इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास लैपटॉप है, पावर बैकअप है, अगर लाइट चली जाए तो मेरे पास ये सहूलत है, वाईफाई अगर डीसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मेरे पास सेल फोन में डाटा मौजूद है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं मैं लैग्स करूंगी, कहीं ना कहीं मुझे जो है वो कमी रहेगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ।
आप सोचें जिन टीचर्स के पास ये सब कुछ नहीं है फिर भी वो मैनेज कर रही हैं क्लासेस, फिर भी वो ऑनलाइन सेशंस ले रही हैं, तो आप बजाय इसके कि टीचर्स को इनकरेज करें, आप टीचर से कहें एग्जैक्टली कि टीचर एग्जैक्टली आपका बिल्कुल हाँ टीचर वाओ हमने तो आज आपको देखा आप कितने अच्छे कमरे में बैठे, आप उनको इनकरेज नहीं कर रहे, आप उनको कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, अच्छा पीछे से आवाजें आएंगी, भाई वो अपने घर में बैठ के अपने घर में बैठ के आप देखिए वो जो एरिया है, अगर फर्ज कीजिए सपोज कि आप एक ऐसी टीचर जो कि अपने घर का एक कह लें सपोर्टिंग पिलर है और वो अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़ा रही है एक स्कूल के अंदर, तो स्कूल को वैल्यू बिल्कुल करना चाहिए, एग्जैक्टली पेरेंट्स को वैल्यू करना चाहिए कि वो इतनी अच्छी टीचर है। और आप जो ये जो बात कर रहे होते हैं ना, जब आप ये टीचर्स को रिस्पेक्ट देने की, टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए आप एक टीचर्स डे मना लेना, उसको कार्ड्स दे देना, ये दैट कह लें कि दैट इज नॉट एनफ। आपको इन सिचुएशंस में पता चलता है, आपको जो है ना ये आप बताएं बिल्कुल टीचर को जाकर कि टीचर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा ये जो है सेशन लिया, चाहे वो फुल ऑफ कह लें मिस्टेक्स है, अगर वो फुल ऑफ मिस्टेक्स है तो आप देखें कि आपकी इंकरेजमेंट से, आपके वर्ड से वो उसको कितना बेहतर कर। अगर आपने जो है ना, आप अगर ये परफेक्शन चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे स्टूडियो के अंदर बैठकर जिस तरह से एक टीवी एंकर जो है वो कह लें कि अपना प्रोग्राम या अपना मॉर्निंग शो कर रही होती है, तो ये आप प्लीज टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो अपने घर के अंदर अगर उसका 2 कमरों का घर है या उसका कह लें कि उसके घर में ये फैसिलिटी नहीं है कि उसके घर में आवाजें भी आती होंगी, लोग भी गुजर रहे होंगे, बच्चे भी होंगे उसके अपने छोटे, इस एनवायरनमेंट के बावजूद, इतनी एग्जैक्टली कम गैजेट के बावजूद वो आपको एजुकेशन दे रही है, आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। वो जो मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि कनेक्शंस का ब्रेकअप है, टीचर्स का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, ये तो 3 पिलर्स हैं। अगर ये 3 पिलर्स अपने कनेक्शंस को थोड़ा सा बेहतर कर लें, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कर लें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कर लें, तो मेरा ख्याल से जो बच्चों की जो एजुकेशन का वावेला मचाया जाता है कि हमारे स्कूल ओपन नहीं है, बच्चे घर में इतनी देर से फारिग हैं, क्या करें, तो आपको थोड़ा सा कहने की स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो है ना वो दिल खुला करना पड़ेगा। टीचर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं या हम कह लें कि उसमें जो हम चीजें मिस करते हैं वो आती है रिसर्च। ऐसे रिसर्चर मुझे मालूम है कि कहाँ पर क्या चीज जो है वो यहाँ पर ब्रेकेज है, तो इसको कैसे जो है ना कह लें कि गिरा लगानी है, इसको कैसे करना है। लेकिन एक जो टीचर है जो कि आपके जो है वो इतने कम रिसोर्सेज के अंदर काम कर रहा है, उसे नहीं मालूम, अच्छा उसको नहीं मालूम होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आप पेरेंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वो अपने जो है ना इर्द गिर्द के माहौल में देखें कि कोई ऐसा बंदा जो कि कोई एक्सपीरियंस, जिससे कि वो बात कर सकें कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो हम इसको कैसे हैंडल करें। और फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो एकदम से रातों रात एक फैसला कर देते हैं और वो उसको कहते हैं सुबह ये इसको इम्प्लीमेंट कर दें। ये भी जो हसल बजल वाली कंडीशन है ना, ये आप देख लें कि उन्होंने ना तो टीचर्स को कंसल्ट किया होता है, ना स्कूल को कंसल्ट किया होता है, और वो एक डिसीजन बना देते हैं, एक पॉलिसी जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको पता चलता है कि ये चीज हो रही है, टीवी से या मीडिया से आपको पता चल जाता है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप एक डिसीजन मेकिंग में जिसने ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको करेगा कौन, उसमें टीचर्स का रोल है, उसमें पेरेंट्स का रोल है। आपने जब इन दोनों को कंसल्ट ही नहीं किया तो आप मुझे बताएं कि क्या वो पॉलिसी, क्या वो डिसीजन, क्या वो जो एक फैसला है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कभी नहीं होगी। अच्छा जो लोग इम्प्लीमेंट कर भी देंगे तो उसमें फ्लॉज आएंगे, यही फ्लॉज आएंगे। आपने जो है वो ये चीजें मेक इट श्योर के पेरेंट्स के पास ये तमाम गैजेट्स हों, मेक इट श्योर के पेरेंट्स जो है वो इस चीज को जो है वो छोटे छोटे जो है ना इररेलेवेंट इश्यूज, आवाजें आ रही थी, अच्छा ये आपने इस तरह से क्यों पढ़ाया, अच्छा आप जो है वो थोड़ा मेकअप करके आ जाए, ये भी कह सकते हैं, आप स्कूल में तो इतनी अच्छी लग रही थी, अभी आप किस तरह के उसमें आ रही हैं। अच्छा बास टीचर्स हैं वो कहने के थोड़ा मिस लुब्ना मीर जी मिस लुब्ना
जी मैं जी यहाँ पर आपकी बात काटूंगा, जैसे कि आप अभी गैजेट्स की बात कर रही हैं, ऑनलाइन गैजेट्स की, तो हमने ये बहुत ज्यादा देखा है स्कूल सिस्टम्स में कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए हम जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ हाई क्लास लोगों को नहीं देखना, बल्कि हमने हर लोगों को देखना, लाइक मिडिल क्लास, लो क्लास, हर कोई एजुकेशन हमारी हासिल कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो जो कम मिडिल क्लास लाइक मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत ज्यादा उनको जो इशू हो रहा है कि नेट नहीं है किसी का, या किसी के पास ऐसे गैजेट्स नहीं है लाइक लैपटॉप्स वगैरह। सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैं इसके बारे में ये कहूंगी कि मैंने यही बात आपसे की कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं या आप एक डिसीजन जो है ना एक अपर लेवल पर आपका या गवर्नमेंट सेक्टर या पॉलिटिकल लेवल पर कोई डिसीजन होता है, तो आप जो है वो टीचर्स को एंगेज करें, पेरेंट्स को एंगेज करें, उसके बाद आप डिसीजन जो है वो आप कह लें कि आप एक पॉलिसी बनाएं। अब आपने कह दिया ऑनलाइन क्लासेस, आप ये समझते हैं कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन? पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे एज ए एक्सपर्ट या एज ए रिसर्चर अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन लेंगे, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ कंटेंट नहीं होती है, सिर्फ वो किताब जिसमें से आपने अपने बच्चों को सिलेबस पढ़ाना है, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है। इस वक्त अगर आप इस कंडीशन में हैं बिल्कुल, कि आप एग्जैक्टली। क्वारंटाइन में हैं, आप घर के अंदर हैं, आप बच्चों को अपने साथ कुकिंग में शामिल करें, आप बच्चों को क्लीनिंग में शामिल करें, ये भी एजुकेशन है। आप बच्चों को, अगर आपके पास सहूलत है ऑनलाइन, आपके पास जो है एक वाईफाई का अच्छा कनेक्शन है, गैजेट्स जिनके पास अच्छे हैं, वो अपने लेवल पर जाकर बच्चों को जो है वो किसी तरह से किसी एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, आप शोज कंडक्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी है। अच्छा, इसमें जो है नेट का कनेक्शन या इस तरह की जो चीजें हैं, जो जो फ्लॉस हैं, उसमें ये होता है कि जब मैंने आपसे कहा ना डिसीजन मेकर, जब वो डिसीजन मेकर ने टीचर्स और पेरेंट्स को एंगेज नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने उस एरिया में या जिस भी कह लेंगे, सपोज मैं आप कराची सिटी की बात कर लेती, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करती, कराची शहर में हर जगह पर एक टाइम पर लोड शेडिंग नहीं होती, एक ही कह लें कि उस तरह से डीलिंग बिल्कुल। नहीं होती, एक ही तरह का वाईफाई का जो है वो सर्विस नहीं है। अच्छा, एक ही जैसी जो है वो कह लें कि वो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिलते हैं, तो आपने पहले ये श्योरिटी लेनी होती है, या अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप ये श्योरिटी करें। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपने जब कह लें कि इसमें जो आपने ये जो सेल फोन है, सेल फोन कंपनियां हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को रजिस्टर किया था, तो उसमें ये हुआ था, उसमें एक कंपटीशन, एक जंग स्टार्ट होती थी। अच्छा, किसी ने अगर 1 रुपए का जो है वो कहने पैकेज दिया है, तो दूसरी कंपनी की होती थी कि उसने उसको हाफ कर दिया, उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसने उसने कहा फ्री है, आप जो है ना इस सर्विस, हमारी ही सिम से दूसरी सर्विस, हमारी ही सर्विस को किसी और को कॉल करेंगे तो फ्री है। अच्छा, पीटी सेल को इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, ये इस तरह से जब किया, तो ये तो कंपनी जब इस तरह की आप चीजें दूसरे लेवल पर जाके करते हैं ना, आप एजुकेशन में ये चीज नहीं कर रहे होते। एजुकेशन सेक्टर में आपने कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप ये करें कि आप ये सर्विस प्रोवाइडर्स की जो सर्विसेज हैं, ये पैकेजेस हैं, ये फ्री करें कि अच्छा हर घर में बच्चा है, हर घर में एजुकेशन है, हर घर में सेल फोन बिल्कुल। भी है, ये भी मैं बता दूं। कम से कम जो है आप कह लें कि छोटे से छोटे पैमाने पर भी देखेंगे ना, तो उसने अपनी जो है ना कम्युनिकेशंस करने के लिए, राब्ते करने के लिए एक से दूसरे शहर में, एक से दूसरे घर में, उसके पास सेल फोन है, भले ही महंगा वाला नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन है। अच्छा, एग्जैक्टली। आप जो है ये यस। मेक इट श्योर, ये श्योरिटी आप एक दे दें कि हर तरह की जो भी जो है कम्युनिकेशन जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उसमें वाईफाई या आप कह लें कि पैकेजेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या इतने से इतने टाइम के लिए जो है वो सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशन है, इसमें पूरे नहीं होगी, पावर फेलियर नहीं होगा, वाईफाई सर्विसेज जो हैं वो घर घर जाकर ना सही एक इलाके के अंदर जो है वो अपना कह लें कि वो उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, सिग्नल्स जो है वो क्या उसको कह लें कि वो उन्होंने टावर्स वगैरह लगाने होते हैं, वो लगा दें, और लोगों को कहें कि अच्छा जी आप जो है वो अपनी जो है वो कह रहे हो ना, आपने सिर्फ पानी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, सप्लाई लाइंस, और हर घर से जो है ना
कनेक्शंस जो है वो घर वाले बता रहे होते हैं, चलिए यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ से जो है ये गैलरी में से पाइपलाइन जाएगी। इसी तरह से अगर आप मेन एरिया में अगर आप देना शुरू करेंगे ना ये वाली सर्विसेज, आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर किसी एरिया में, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अपर लेवल की कोशिश होनी चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड है। अभी इसी तरह से आप आ जाएं कि अगर जो है मोहल्ले में 20 घरों में सारी एक जैसी सहूलत नहीं है, तो उस एरिया में आप देखें कि कोई एक घर जहाँ पर बहुत बड़ा सा वो एरिया हो, सहन हो, आंगन हो, वहां पर आप जो है एक बड़ी सी स्क्रीन लगा सकते हैं। मैचेस तो आप देख लिया करते होते थे वर्ल्ड कप के और उसके, बिल्कुल ये चीज जी। आप यहाँ मैं बात कर लूंगा मिस लुबना, एजुकेशन में नहीं बिल्कुल करते मिस लुबना, आप एक बिल्कुल सॉरी आप अगर 20 घर एक एरिया में आप कहने कि 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, आप जो है वो वहां पर ये सहूलत इस तरह से कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, कॉपरेशन से होता है। लोग अगर सीरियस हो ना, लोग सीरियस इस तरह से नहीं होते हैं कि हर कोई जो है ना वो कह लें कि अगर आपने, अजीब सा लगता है ये मिसाल देते हुए, कि अगर आपने सबको जो है ना वो कह लें बाजा एक पकड़ा दिया होता है ना, वो जो बच्चे बजा रहे होते हैं मुंह में लेके, सबके जो है ना वो बाजे बज रहे कि स्कूल अपनी जगह पे रो रहे हैं, पेरेंट्स अपनी जगह पे रो रहे हैं, टीचर्स अपनी जगह पे रो रहे हैं, लेकिन ये जो सब लोग जो हैं मुतासिर जो है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है? बच्चा, उसकी एजुकेशन, सब उसके लिए परेशान है लेकिन उसी के लिए काम नहीं हो रहा। आप बात करिए। मैं बिल्कुल यही कह रहा था लुबना अमीन, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हमारे काम की कोई चीज होती है या हमारे लगन के लिए कोई चीज होती है या हमारी लाइक हमारे फन के लिए कोई चीज होती है, तो उसमें हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है, हर कोई इसमें जो है लाइक हिस्सा लेने के लिए तैयार होता है। मगर जब बात आती है एजुकेशन की तो सारा इल्जाम थोप दिया जाता है, स्कूल सिस्टम्स पर सारा इल्जाम जो है दे दिया जाता है, टीचर्स को। ये बहुत ज्यादा मैंने देखा गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि ये सब चीजें चल रही है। आप जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैचेस के लिए हम बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं, मैचेस हारने पे उस स्क्रीन को तोड़ दिए जाते हैं, मगर ये सारे जो फजूल खर्चे ये एजुकेशन सिस्टम पे नहीं हुए। अभी आप देखे ना, आप देखे आपने, अब आपने जो है वो फौरी तौर पर आपने महसूस किया कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो जो मजदूर तबका है, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, वो भूख से, जो आपका कह लेना कि प्राइमरी मोटिव्स होते हैं इंसान की सर्वाइवल के लिए, भूख और प्यास, इसको कवर करना होता है, तो हर कोई जो है इसकी तरफ लग गया राशन बांटने के लिए कि जी हम राशन प्रोवाइड करेंगे, करें वो करें। आप ये देखेंगे कितने लोग जो है, कितने लोगों ने ये सर्विस प्रोवाइड की है कि हम जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो लगा देंगे और बच्चे जो हैं उस एरिया के, उस स्कूल में जो डिफरेंट स्कूल्स है, सपोज के अगर 20 घर है, 20 से वो जो है उनको आप जो है ना टाइम रख दें कि भी क्लासेस होंगी। अच्छा वहां पर उस एरिया में टीचर्स भी होंगे। अच्छा टीचर्स जो है ना, अब अगर फीमेल टीचर है वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहती हैं, इस चीज का भी देखना पड़ता है। अच्छा स्क्रीन पर नहीं आ रही है तो आप उनको जो है वो कैमरा म्यूट करके आप उनका वॉइस डेटा ले लें, आप बताएं कि भी हाँ ये है। अच्छा उसमें फिर कोई आप ये उसके साथ ही आप ये भी एक इंस्ट्रक्शंस दे दें कि कोई जो है वो इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा टीचर्स को कि भी आपकी जो है वो वॉइस अच्छी नहीं थी, आपका जो है ना ये कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, अप टू द मार्क नहीं था, या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। वो इसलिए कि आप जो है वो कह लें ऑफ द रिकॉर्ड जाकर, या आप जो है ना फीडबैक, एक वो छोटी सी बुक होती है, या आप कह लें SMS होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप उसमें एक बहुत पोलाइट वे में, एक बहुत नॉर्मल अंदाज में अगर आप टीचर को कन्वे कर देंगे ना अपनी कंप्लेंट्स, तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट है। आप डायरेक्टली टीचर को ये कह दे कि आपका जो है ये आपने फलां वर्ड जो है वो सही प्रोनाउंस नहीं किया, सारा उसने लेक्चर से ही दिया होगा, एक लफ्ज अगर उसने गलत बोल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक अगर वो उसने बोर्ड पर गलत लिख दिया, उससे मिस्टेक हो गई, टाइपो एरर, आपने माफ नहीं करना, आपने जो है वो चीज उसकी वो ये जो चीज है ना, ये चीज आपको मैं बताऊं कि ये बच्चे की एजुकेशन मुतासिर करती है। टीचर को तो ये है ना कि उसके लिए एक लेसन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वो इससे सीख कर आगे कहीं बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं होता, उसमें नेगेटिविटी लाइक आ रही है।
اچھا یہ والی جو چیز ہے نا बिल्कुल اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک وہ ترکون بنتی ہے نا، ایک ٹرائنگل بنتی ہے، ہوم اسکول اینڈ کمیونٹی. ہوم اسکول اینڈ کمیونٹی یہ تین جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ہم بچوں ٹیچرس ٹریننگ میں یہ رکھتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین کنیکشنز میں ہوتی ہیں تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. اس میں اگر کہیں جو ہے نا اس طرح کی وبا آ جائے، बिल्कुल اگر فلڈس آ جائیں، نیشنل کہہ لیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی کنڈیشنز میں آپ کا ایجوکیشن سسٹم متاثر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم اٹھا کر مثالیں جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کی دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اسی لیے بہترین ہے کہ اس کے کنیکشنز بھی بہت بہترین ہیں. اگر کسی نے فون کر کے جو बिल्कुल ہے وہ ایک बिल्कुल بچے نے एग्जैक्टली اگر بچے کا ٹیچرس کا بچے کا آپس میں جو ہے آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کنیکشنز نہیں ہیں. انٹرنیٹ बिल्कुल پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں. بٹ آپ یہ سوچ गुड لیں کہ यस ٹیچرس کی وائس یا ٹیچرس کی آواز اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں. ٹیچرس کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اٹھا کر سارا بلیم ٹیچرس پہ دے دیں گے، مینجمنٹ وہ اٹھا کے سارا बिल्कुल بلیم ٹیچرس کو دے دیں گے، آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ٹریننگ دی تھی ٹیچرس کو، آپ نے مونٹیسری کی دی تھی، آپ نے ای سی کی دی تھی، آپ نے اس کو جو ہے پرائمری لیول کی ٹریننگ دی تھی. اب یہ اس طرح کا ڈیزاسٹرز ہے، اس طرح کی جو کنڈیشن ہے، اس میں ہینڈل کیسے کرنا ہے سچویشن کے اگر آپ نے ٹیچرس کو نہیں بتایا، نہیں سکھایا، لیکن وہ پھر بھی اس دور میں کوشش کر رہی ہے، اپنی बिल्कुल جابس کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ باقی جو ہے وہ بچوں کے لیے وہ کنسرن ہے. وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی یاد کرتی ہیں، اتنا ہی اسی طرح سے وہ کنسرن ہے جتنا کہ وہ اپنے بچے کے لیے. آپ سارا بلیم ٹیچرس کو एग्जैक्टली دینے کے بعد آپ ان کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اسکول کھلنے کے بعد آپ ٹو دا مارک وہ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ٹیچرس کے لیے بھی یہ بہت بڑا کہہ لیں کہ ڈرا بیک ہے. ٹیچرس میں بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیچرس کو ایک اس میں کہہ لیں کہ جو مینجمنٹ ہے وہ سکسیسفل ٹیچرس چاہ رہی ہوتی ہے، اسکلفل ٹیچرس نہیں چاہ رہی ہوتی. اب پیرنٹس کو یہ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ انہیں بتائیں کہ اگر ان کے جو ہے وہ کلاس میں ایک اسکلفل ٹیچر ہے، وہ سکسیسفل اور اسکلفل ٹیچر میں بھی کہہ एग्जैक्टली لیں ڈفرنس ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے اسکلفل बिल्कुल ٹیچر سکسیسفل ٹیچر وہ ہوتا ہے جس نے کہ اپنا جو ہے وہ یوٹیلائز اس نے کیا، اس کے پاس جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ ٹریننگ تھی، اچھی ایجوکیشن تھی، اسکول نے اچھے اکوپمنٹس پرووائڈ کیے، اور اس کی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا جو ہے کہہ لیں کہ آفٹر 1 ایئر اس کی پرفارمنس جو ہے اسٹوڈنٹس کی اپ ٹو دا مارک تھی، تو آپ نے ٹیچر کو سکسیسفل دے دیا، دیٹس اوکے. یہ ہوتا ہے. لیکن وہی ٹیچر وہی ساری ٹریننگ وہ बिल्कुल سب کچھ فیل ہو جاتی ہے اگر جو ہے وہ کلاس کے اندر کبھی جو ہے ایک یا دو بچے پرابلم کے ساتھ آتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہوں یا ہیلتھ ایشوز ہوں یا ان کی جو ہے اکیڈمک ایشوز ہوں، وہ پرفارمنس نہیں رہتی ہے تو آپ ٹیچرس کی بھی پرفارمنس کو جو ہے نا وہ اس میں بھی اسٹگما لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ پچھلے سال تو بہت اچھی تھی، آپ کیوں نہیں ایسی. حالانکہ اس میں کوئی اتنا فرق نہیں آیا ہوتا. एग्जैक्टली ایک سال میں آپ کی बिल्कुल ٹریننگ کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اچھا پھر ایک سال کی ٹریننگ کے دوران آپ نے جو ہے مینجمنٹ لیول پر میں پوچھوں گی کہ کیا آپ نے ٹیچرس کو جو ہے اپ گریڈ رکھا؟ اب اگر آپ نے اپ گریڈ رکھا ہوتا تو آپ کو میں بتاؤں یہ آن لائن کلاسز یا ای ٹیچنگ یا ای لرننگ کافی سالوں سے ہے، بہت عرصے سے میں یہ एग्जैक्टली اس سے انگیج ہوں. لیکن ہاں ٹھیک ہے، ٹیکنیک وہ جو ہے نا کہنے کہ ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں اور مختلف سافٹ ویئرس ہیں، ہاؤ ٹو یوز دیم. مجھے اسٹریم یارڈ کا نہیں پتا تھا، یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ اس کو سارا سیکھا. میں بھی سیکھ رہی ہوں، اس لیول پر آ کر بھی سیکھ رہی ہوں کہ ٹیچرس کو ٹریننگ دیتی ہوں پھر بھی میں سیکھ رہی ہوں. تو ایک ٹیچر ہے बिल्कुल बिल्कुल جسے سکھایا ہی نہیں ہے ہم نے تو اس کو نہیں بتایا کہ آپ نے آن لائن سیشن کیسے جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے ہیں، ٹریننگ میں تھا ہی نہیں. اب جب آپ کے پاس ایک دس از دا اونلی آپشن نا، اب آپ کسی اور آپشن پہ نہیں جا سکتے، تو آپ یہ کر سکتے एग्जैक्टली ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ ایک بڑی سی اسکرین لگا دیں اور اس میں جو ہے اگر 20 سے 25 بچے ڈفرینٹ اس میں کہ آپ بیٹھ جائیں اور وہ جو ہے وہ اسکرین سے اچھا بعض بچے ایسے بھی ہیں جو اسکرین کو اپنے گھر کی چھتوں سے دیکھ سکتے ہیں.
अगर आप ये कहें ना कि वहां पर हम SOPs का से फॉलो करेंगे, ये हो सकता है, मुमकिन है। अगर आप हर घर में राशन पहुंचा सकते हैं, आप हर घर की जरूरत का ख्याल रख सकते हैं, तो एजुकेशन में भी आप वावेला ना मचाएं। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो उन कम रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स भी एक्सेप्टेंस का मुजाहरा करें, टीचर्स के लिए इतना बोझ मत डालें, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से भी उन पर बोझ होता है। और मैनेजमेंट लेवल पर मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास जो है ये फाइनेंशियल कह लें कि थोड़ी सी इश्यूज आ गए हैं, तो उसको हैंडल करें। उसमें टीचर्स को सिर्फ ये कि आप टीचर्स को जो है वो जॉबलेस कर देंगे या आप उनकी सैलरी डिडक्ट कर देंगे, तो ये मसले का हल नहीं है। एक और जात भी है जो ऊपर बैठी है, रज़ाक है। अगर आपने अल्लाह को रज़ाक माना है तो वो आपका रिज़्क कहीं ना कहीं से पूरा कर देगी। जब हम ये है ना कि हम मान तो लेते हैं, हम सिखा भी देते हैं कि अल्लाह रज़ाक है, लेकिन हम दिल से नहीं मानते। हमारा अमल नहीं वो जाहिर करता। अगर आप अमल अपना ना प्रैक्टिकल आप शो करें कि आप वाकई जो है वो कंसर्न है बच्चों की एजुकेशन के साथ। ये जो छोटे छोटे इश्यूज है ना, इनको हाईलाइट ना करें, टीचर ने ये नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं हुआ, बुक ऐसे थी, बुक उल्टी पकड़ी हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, ये छोटे छोटे इश्यू हैं, इसको प्लीज ऐसा ना करें। So मिस लुबना मीर, ये अनवर हुसैन का क्वेश्चन है कि मिस लुबना ये बताइए कि टीचर में सबसे अच्छी स्किल्स क्या होनी चाहिए। ये बताइए कि सबसे अच्छी स्किल टीचर में क्या होनी चाहिए। टीचर में जो सबसे अच्छी स्किल है, जो हम कह लें कि हम फोकस कर रहे होते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बात करें तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अच्छा, टीचर्स को हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो जब मैं जब ट्रेनिंग देती थी तो मैंने उनको जो है एक बहुत अच्छा सा एक वो रखा हुआ था कि आप जो है आप ये समझे, हालांकि वो 18-20 साल से लेकर 30-35 साल की लेडीज भी होती थी, तो वो मैं उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी। मैं उन्हें कहती थी अच्छा आज से आप मिस लुबना बन जाए, और आप जो है ना जो मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन होती है शुरू में। जब मैं क्लास में गई, अगर 1 से 1.5 घंटे की क्लास है तो मैंने उनसे कहा कल जो मैंने पढ़ाया है आप जरा इसको रिवाइज करें क्लास में से किसी को। अब वो जो सामने खड़े होकर बोलना है ना, वो नहीं आता, हाउ टू कम्युनिकेट। अच्छा, वही क्वेश्चन अगर मैं एज ए टीचर एज ए ट्रेनर मैं खड़ी हूँ और मैंने पूछा कि कल हमने आपको जो है सिखाया था जरा उसको रिवाइज करें, तो अपनी ही जगह पर बैठकर उनको कम्युनिकेट करना बहुत सारे लोग कर लेती थी, टीचर्स बता देती थी। जब उन्हें अपनी जगह से हटाकर कहा कि आज आप मिस लुबना की जगह खड़े होकर बताएं, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। कहती हमने कभी खड़े ही नहीं हुए, जिंदगी में कभी किसी ने इतना वो नहीं दी, अहमियत ही नहीं दी, रिस्पेक्ट ही नहीं दी कि हम खड़े होकर बोलेंगे, हम टीचर की जगह खड़े होकर बोलेंगे। तो मैंने कहा कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। अगर आज आप ट्रेनिंग सेशन में ही खड़े होकर बोलना नहीं सीखेंगे तो आप जो है वो फिर अपने बच्चों को कैसे जो है वो सिखाएंगे। फिर आप बच्चों की प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो आपको जो है ना पेरेंट्स कम्युनिकेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। दूसरी टीचर्स की एक और स्किल है जिसको हम स्किलफुल टीचर्स में हम फोकस करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। एक टीचर्स में रीडिंग हैबिट्स नहीं, अगर उनके पास सेल फोन आ गए हैं तो वो फेसबुक या गूगल पे कुछ चीज़ सर्च कर ली, दैट्स एनफ, ऐसा नहीं है। किताबें आज भी उतनी ही अहमियत की हामिल हैं जो कि बहुत अर्सा पहले थी। आप रीडिंग हैबिट्स, अगर आपके पास डिजिटल जो है फ़ोन है तो आप बहुत सारी बुक्स को डाउनलोड कर लें, PDF फाइल्स मिलती हैं, आप स्टडी ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि आपके जो जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके जवाब आपको मिलते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई स्टूडेंट उठकर आपसे पूछे तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप अपडेटेड रहते हैं। तो टीचर्स के पास एक रीडिंग स्किल्स, वो रीडर होना चाहिए। दूसरी स्किल उसके मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बता दिए। तीसरी कोऑपरेट। अच्छा, कोऑपरेशन में ये होता है कि टीचर के साथ कोऑपरेट करें। अगर जो है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक स्क्रीन लगा दें तो अगर एक एरिया में जाकर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसी तरह से अगर टीचर्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज़रूर राब्ते में होंगी। टीचर्स का अपने ही स्कूल के अंदर एक ग्रुप बना हुआ होगा, अगर वो टीचर्स जो है वो एक दूसरे को हेल्प करें, अच्छा जी मैंने तो जो है ना ऑनलाइन सेशन किया था, इसमें ये मिस्टेक थी, तुम ये मिस्टेक ना करना। अच्छा, मुझे तो ऑनलाइन सेशन ही कंडक्ट करना नहीं आता है, कैसे करूँ? अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयरिंग नहीं आती है, आप छोटी सी वीडियो बनाएं और आप उनको दे दें। इसको कहते हैं कोऑपरेशन।
کوپریشن اینڈ کولیبریشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اسکل بھی ٹیچرس میں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور ہوتی ہے سوشل ایکٹیوسٹ. اب سوشل ایکٹیوسٹ میں کہہ لیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو یہ اس کی یہ اسکل نہیں ہونی چاہیے یا اتنی کوئی ضروری نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ٹیچرس کی بات زیادہ کنوے ہوتی ہے, بچے زیادہ سنتے ہیں. ابھی جیسے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جیسے ہاں کوارنٹائن ہے تو اس میں اگر بچے ٹیچر نے جو ہے وہ محدود وسائل کے اندر آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری پکچرز اپلوڈ ہو رہی تھی, اس کو بہت ساری لائک مل رہے ہوتے کہ اس کے پاس ٹرائی پوڈ نہیں ہے تو اس نے کسی طرح سے جو ہے وہ ہینگر کے اندر کیمرہ فٹ کر کے تو اس نے وہ بنا دی. آپ کو ویڈیو دیکھنے سے نہیں لگ رہا کہ اس نے کیسے پیچھے سے کن مسائل سے گزر کے وہ ویڈیو بنا لی. تو اسی طرح سے اگر کوئی سوشل کوئی پرابلمس ہیں, سوسائٹی کوئی پرابلم فیس کر رہی ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز میں کہہ لیں کہ سوسائٹی اس کو فیس کر رہی ہے, فلڈس آ گئے ہیں. جیسے آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زلزلہ یا اس طرح کی جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں. لینڈ سلائڈنگ ہوگی, اسکول بند ہو گیا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ کیسے ٹیچرس نے جا کر لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کی جو ہے نا ٹیچر جو ہے وہ گھر سے نکلے اور وہ جو ہے جا کر پیرنٹس کو کنوے کر سکتا ہے کہ بھی اس کنڈیشن میں ہم جو ہے اگر ہم نے پورا سلیبس نہیں کروانا ہے تو ہم اس کو سلیکٹیو اسٹڈیز پہ جا سکتے ہیں, آپ پلیز جو ہے نا اس طرح سے کریں. اچھا آپ بچوں کو جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ بھیجنا آپ کہہ لیں نا چھٹی کروا لیتے ہیں تو آپ اسکول سے چھٹی نہیں کروائیں. یہ تو میں ان دنوں کی بات کر رہی ہوں کہ جس وقت آپ کوارنٹائن میں نہیں ہیں. تو وہ سوشل آپ کہہ لیں کہ وہ ایکٹیولی سوشل ہوتا ہے. جو ٹیچر ہے اس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ سوسائٹی کے اندر موو کرنا ہوتا ہے. سوسائٹی کے اندر کچھ ایشوز ایسے آ جاتے ہیں کہ جس کو ٹیچر اگر ایڈریس نہ کرے تو لوگوں پر لوگ اس بات کو اتنا وہ کہہ لیں کہ وہ اہمیت ہی نہیں دیتے, سمجھتے ہی نہیں. بالکل بالکل ہاں نہیں اثر نہیں ہوتا. تو آپ جیسے جیسے لوگ ہیں, اگر میں نے آج آپ کو جو ہے وہ آپ کا ایک سیشن بیچ میں سے وہ ڈی سی ہو گیا, آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ پرابلمس آ گئے, میں نے آج آپ کو جو ہے وہ ایز اے ٹیچر اگر ایک بھی اچھی بات آپ نے سیکھ لی ہے تو میرے یہ 20 سے 25 منٹ 40 منٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ اس کا آؤٹ پٹ ہوگا کہ میں نے ایک بات بھی کسی کو اچھی کنوے کر دی ہے اور اس نے وہ سیکھ لی ہے. سننے والوں میں سے اگر کسی نے سیکھ لی ہے تو یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. تو اسی طرح سے یہ کہہ لیں کہ کنٹیجیس ہوتا ہے. اچھی بات پازیٹیوٹی اگر آپ نے آج سیکھی ہے تو آپ اس کو کنوے کریں گے. اگر ٹیچر نے جو ہے پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنی چاہیے. بالکل ہاں, اگر جو ہے میں نے آپ کو سکھائی ہے تو آپ آگے جا کے 10 لوگوں کو سکھائیں گے. اسی طرح سے اگر ٹیچر نے جو ہے وہ ایک اچھی بات اسکول کے اندر بتا دی ہے سوسائٹی میں یا اچھا جو سوسائٹی ہے کمیونٹی کے جو کہہ لیں کہ گیدرنگس ہوتی ہے نا, کمیونٹی گیدرنگس ہوتی ہیں, اس میں بھی اگر ٹیچر جو ہے وہ اپنا ایکٹیویٹی رول پلے کر سکتا ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی وہ اس کو کہتے ہیں پرابلم سالونگ. آپ جب پرابلم سالونگ جو ہے اگر ٹیچر خود رول ماڈل نہیں ہے پرابلم سالونگ کے لیے, وہ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو پرابلم سالونگ پر نہیں لا سکتا. کبھی اس کو پرابلم سالونگ اس کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کیسے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. تو ٹیچرس میں یہ جو 3-4 سکلز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کہہ لیں کہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچرس جو ہیں یہ اس کو پریکٹیکلی کریں, اور اس میں میں پھر بار بار بات کرتی ہوں کہ اس میں ریسرچ آ جاتی ہے. ہم نے اگر جو ہے وہ ٹیچرس کو ہی ریسرچ کرنا نہیں بتایا تو آپ یقین مانیے ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ اس طرح سے سالو نہیں ہوں گے. ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان کو پرائمری یا روٹ لیول پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پرائمری ٹیچرز کیا چیز فیس کر رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کہہ لیں کہ فورن کوالیفائڈ ہوتے ہیں, باہر سے آ جاتے ہیں یا گھر کے کہہ لیں کہ بہت اچھی سی کوالیفیکیشنز کے ساتھ وہ ڈائریکٹرشپ پر آتے ہیں, ڈائریکٹلی ڈائریکٹرشپ پر آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں کبھی کہہ لیں کہ ایک آدھ دفعہ وہ چلے بھی گئے وزٹ پر, اسکولس کو وزٹ کر لیا, ٹیچرس کو وزٹ کر لیا اور اسی پر انہوں نے ڈیسیژن میکنگ کر لی. تو اگر جو ہے ایک ٹیچر پرائمری ٹیچر اس کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے, اگر وہ ہی وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو آپ سوچ لیں کہ ہمارے لیے جو ہے پرائمری ٹیچرس کے لیے پری پرائمری ٹیچرس کے لیے یا کہہ لیں ایجوکیشن سیکٹرز کے لیے جو بڑے بڑے ڈیسیژنس ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں آپ کر سکتے.
बिल्कुल आप क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर किसी को कुछ और पूछना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी सो जी बिल्कुल अभी तो क्वेश्चन ये मिस सर का सर अनवर हुसैन का क्वेश्चन आया था। जी अब जी। तो और किसी क्वेश्चन नहीं है। सो मैं ही क्वेश्चन आपसे करूंगा मिस लुबना कि देखें जैसे कि हमारे टीचर्स को सबसे ज्यादा फेस ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बहुत ज्यादा बिग इश्यू होता है कि आज जैसे कि आप एज अ टीचर ट्रेनर। सो मैंने सोचा आपसे मैं पूछूं क्योंकि मेरे से बहुत सारे टीचर्स ने क्वेश्चन किया हुआ था कि आप बिल्कुल अगर किसी अदर ट्रेनर से जैसे आप लाइक बहुत ज्यादा एजुकेटेड ट्रेनर है और बहुत अच्छे ट्रेनर है। सो मैंने पूछा कि आपसे मैंने सोचा आपसे पूछूं। तो ये बताइएगा मिस लुबना कि टीचर को बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चे को लाइक बच्चों की फेस रीडिंग होती है उससे करना है, किस बच्चे को किस तरीके से, जैसे अगर कोई बच्चा नॉटी है क्लास में उसको हैंडल करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। सो वो ट्रिक्स बताएं ताकि हमारे टीचर्स जो है उस ट्रिक्स से लाइक फायदा उठा सकें। अच्छा देखिए, एक तो होता है, आपको इसको कह देंगे क्लासरूम मैनेजमेंट में हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि अपने क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से टूल्स और वो कहने की टेक्निक्स हम उनको बताते हैं कि आपने इसको हैंडल करना है। बट मैं आपको जो है ना जनरली आपको बता दूं कि दो तरह से आपकी हैंडलिंग होती है। टीचर ने हैंडल करना होता है। एक कह लें कि बहुत छोटे बच्चे हैं या आप ग्रेड 3 और 4 के बच्चे कह लें, इन दोनों की मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से हैंडल करना है। अगर आज आपने ना कोई लेसन प्लान किया है और बच्चे जो हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं, छोटी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो अगर तंग कर रहे हैं और आपका जो है वो फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ी सी देर के लिए 5 से 10 मिनट का आप कह लें ब्रेक दे दें। बच्चों को ब्रेक दे दें, खुद को ब्रेक दे दें। उससे क्या होता है कि बच्चों को फिर आप अगर उनका मूड देखें कि अगर बच्चे जो हैं वो लेसन की तरफ आ ही नहीं रही, हाँ अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत अच्छा लेसन प्लान किया है और आपने उनको बताना है और विद इन 40 मिनट बताना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फौरन चेंज करें। आप स्ट्रेटेजी इस तरह से चेंज करेंगे कि 5 से 10 मिनट आप ब्रेक दे दें। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप भी क्लास से बाहर निकल जाएं, बच्चे भी बाहर, ऐसा नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप ये कह दें आज हम लेसन की तरफ आप आए ही ना, क्योंकि बच्चों का मूड नहीं बन रहा, बच्चे तंग कर रहे हैं, क्लास में कियोस क्रिएट हो रहा है, शोर हो रहा है। अब बच्चों से कहें कि आज जो है ना हम बिल्कुल स्कूल का राउंड लगा कर आएंगे। अभी हम ना आप उनको लाइन अप बिल्कुल करें और एक स्कूल का राउंड लगाकर आप दोबारा से क्लास में लेकर आ जाइए। एक छोटी सी एक टैलेंट टिप है, या मैंने कई दफा ये किया है। आप बच्चों को जो है ना वो राउंड लगा कर आप आ जाए, तो आप आपकी मैनेजमेंट भी पूछे भी ये क्यों आप बाहर ले आए हैं। अव्वल तो मैनेजमेंट को नहीं क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब आप 5 से कह लें कि इसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगने चाहिए इस एक्टिविटी को। 5 मिनट की एक्टिविटी के बाद आप 5 मिनट एक्टिविटी करेंगे, आप पूछेंगे अच्छा आपने जो आपने चक्कर लगाया है, आप बताना चाहेंगे कि मैंने ये चक्कर क्यों लगवाया है, हम क्यों स्कूल का राउंड लेकर आए हैं। अच्छा, उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लें, बच्चों से डिस्कस कर लें, छोटी सी हेल्दी सी डिस्कशन जो कि कह लेंगे जिसका लेसन प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी लेसन प्लान से उसका ताल्लुक बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट आप कर सकेंगे। लेकिन वो जो 10 मिनट की एक्टिविटी है उससे बच्चे जो है क्या होंगे कि वो फोकस हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। वो जो थोड़ा सा वो इरिटेट हो रहे थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, वो जो चीज है ना उससे आप हट जाएंगे। जब आप हट जाएंगे तो आपने देखा कि आपने बच्चों की ना वो सारी कह लें कि टीचर के हाथ में ना वो सारी की सारी ये कह लें कि उंगलियों के अंदर वो होती हैं वो तारें जिससे कि सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, वो कनेक्शंस होते हैं। आपने जो है उनको जो है वो आगे पीछे करना होता है, ये टीचर का कमाल होता है। अब जब आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो राउंड लेकर आ गए हैं, बच्चे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो भूल जाते हैं कि हम जो है टीचर को तंग कर रहे थे, हम शोर कर रहे थे, हम एक दूसरे को जो है ना पिटाई कर रहे थे, हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो कागज के वो बॉल्स बना के फेंक रहे थे। इस तरह से यही है ना एक आपने इसको आपने बड़े अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया होता। उसके बाद आप कहें कि आज जो है ना हमने स्कूल का ये राउंड लिया, हम जो है वो आइंदा किसी इसमें मैं आपसे ये पूछूंगी और आप जो है ना इसका वो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि टीचर ने ऐसा किया। अच्छा, बच्चों में क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है, वो हैरान होते रहेंगे, सोचते रहेंगे टीचर ने ये राउंड किया। अब आप उनको जो है ना आराम से जब सारे एक ही पेज पर आ जाएंगे तो आपने जो है ना आराम से ग्रेजुअली जो है वो आपने अपना लेसन जो है ना बताना शुरू किया कि हमने आज ये लेसन। अच्छा, टीचर के पास ये एबिलिटी भी होती है
کہ وہ اس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کو اپنے اسی کرنٹ لیسن کے ساتھ, لیسن پلان کے ساتھ فوراً انٹیگریٹ کر سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا ایک وہ ہیلدی انوائرمنٹ, 40 منٹس کا آپ نے لیسن پلان کیا تھا, 10 منٹ آپ کے نکل گئے, تو آپ اس کو تھوڑی سی بیچ میں سے چیزیں نکال کر آپ جو ہے نا اس کو 30 منٹس تک آپ آرام سے کر سکتے ہیں. لیسن پلان بھی آپ کا ہو جائے گا, بچے بھی آپ سے کنٹرول ہو جائیں گے, اسکول مینجمنٹ کو بھی ہوگا کہ ٹیچر نے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ بہت شرارتی بچوں کی کلاس کو ہینڈل کر لیا. اور بچوں کو جو ہے اس کا کیا بچوں کا امپیکٹ کیسا آئے گا؟ بچوں کا امپیکٹ آئے گا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اگر ہم بہت زیادہ شور کریں گے یا ہم ٹیچر کو تنگ کر رہے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے یا اس طرح سے ہمیں انگیج کریں گی اور وہ لے کر آئیں گی. کچھ جو ہے وہ کانشیس ہو جائیں گے, کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کا بریک آ جائے گا, 1 سے 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ رک جائیں گے. اچھا, آپ یہاں پر سختی نہیں کر سکتے, آپ بہت زیادہ چیخ چلا نہیں سکتے, آپ پنشمنٹ نہیں کر سکتے, تو اس کو آپ نے پروڈکٹیو وے پہ کیسے استعمال کیا. اچھا, اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ میں ایک دوسری چیز آتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ورک شیٹ دی ہے اور بچے نے وہ جو ہے وہ کر لی ہے, اور کچھ بچے جو کہ بہت اچھے ہیں, ابو ایوریج ہیں, بہت تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں, وہ فوراً کر کے بیٹھ جائیں گے, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, باقی بچے جو ہیں وہ اپنے پیس کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کی جو ہے نا لیسن پلان اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان بچوں کے لیے جو کہ تھوڑے سے بہتر ہیں, کلاس میں بہت ایکٹیو ہیں, وہی بچے جب آپ کی ورک شیٹ کر لیتے ہیں تو اگر 30 میں سے 5 بچے جو ہیں وہ کر لیے اور باقی جو ہیں وہ 25 بچے وہ ابھی کر رہے ہیں, تو اب وہ 5 بچے جو ہیں وہ تو کر کے بیٹھے ہیں, بچوں کو تو اب کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی چاہیے, تو آپ نے 5 بچوں کے لیے ایک علیحدہ سے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کری, اچھا جی آپ نے یہ کر لیا, اچھا یہ کریں, یہ والی ایک چیز آپ ان کو ڈرائنگ کا کوئی چیز دے دیں. اچھا, آپ ان کو ایک کارنر, وہ جو ہے لرننگ کارنرز بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ یہ والی بک ہے, اس میں سے یہ والا جو ہے پیج یہ جلدی سے جو ہے نا یہ آپ پڑھ کر آئیں, میں نے آپ سے اس سے کوشچن کرنے ہیں. اب باقی کلاس جو ہے وہ آپ کا وہی والا لیسن پلان وہی جو ہے ورک شیٹ کر رہی ہے, 25 بچے وہ سکون کے ساتھ کریں گے, اور وہ 5 بچے جو کہ وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں رکھ جائیں گے, ان کا ایک پروڈکٹیوٹی ہو جائے گی. جب وہ 30 کے 30 بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ آ گیا نا, وہ جو 25 بچے انہوں نے وہ اسکول وہ جو ہے وہ بک نہیں پڑھا, اس کا وہ لیسن یا وہ چیپٹر نہیں پڑھا جو ان 5 بچوں نے پڑھا تھا. اب جب آپ واپس آئیں گے اسی ایک پیس میں لے کر, تو آپ کہیں گے ہاں جی میں نے جو ہے حمزہ کو یہ کہا تھا, یہ آپ جو ہے نا حمزہ جو ہے نا وہ پڑھ کر آئے. حمزہ آپ ذرا باقی کلاس کو بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا. وہ آپ کو 10 منٹ مل جائیں گے اپنا جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے میں, چیزیں سمیٹنے میں, آپ کی جو ورک شیٹس ہیں ان کو کور کرنے میں, ان کو مینیج کرنے میں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کو آپ نے ایک تو ورک شیٹ بھی کمپلیٹ کروائی, ٹھیک ہے, آپ نے کلاس روم اس کا ایٹماسفیئر بھی مینیج کیا, اچھا بچے کو آپ نے انگیج بھی کیا. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بچے میں کمیونیکیشن اسکلس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ نے بچے کو کہا کہ اچھا آپ نے جو ابھی لیسن پڑھا باقی کلاس کو بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اسے لگ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ میرے میں ہے, اور ٹیچر نے مجھے علیحدہ سے ایک کام بھی دیا اور میں نے آگے سے بچوں کو بھی بتانا ہے. لیڈرشپ کوالٹیز آپ اس میں بلڈ کر رہے ہیں. اچھا, کلاس روم مینجمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ کلاس میں شور نہیں ہوگا, بچے ہیں شور کریں گے, ایکٹیویٹی آپ کروا رہے ہیں بچے. صحیح بات ہے. اچھا, اگر آپ نے ٹیچرز کا یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اگر بچے کو ریڈنگ کے لیے الگ سے بٹھا دیا ہے تو باقی بچے کہیں گے کہ بھی ہم نے نہیں پڑھا, تو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اپنی ورک شیٹ کر رہے تھے بیٹا, انہوں نے کر لیا تھا, یہ ان کے اگر آپ کل جو ہے اگر آپ بھی اپنا جو ہے وہ ٹائم بھی اپنی کمپلیٹ کر لیں گے, کل آپ آ کے پڑھیں گے. اچھا, وہ جو ہے ہو سکتا ہے باواز بلند پڑھے, آپ نے اسے بتانا ہے کہ ریڈنگ, سائلنٹ ریڈنگ کیا ہوتی ہے, یہ بھی ایک چیز ہے, یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے آپ نے. اب باقی 25 بچے جو ہے اگر ورک شیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں ریڈنگ دے دیا, ریڈنگ ہو سکتا ہے اس کو یہ پسند نہ آئے, ٹیچر نے جو ہے وہ کام بھی میں نے کر لیا اور مجھے پسند نہیں آیا, اب کیا کریں. اب یہ ہوگا کہ وہ باواز بلند پڑے گا. میں آپ کو بچوں کی اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ آپ نے جب ڈفرینٹ ٹیکنیکس ایٹ دا اسپاٹ چینج کی تو آپ کو کیا ہوتا ہے, اب وہ باواز بلند پڑے گا, تو آپ نے کیا بتانا ہے, آپ نے بہت اس کو کہہ لیں کہ اس کو ٹریننگ دینی ہے, اس کو بتانا ہے کہ حمزہ آئی وانٹ سائلنٹ ریڈنگ. اب سائلنٹ ریڈنگ اگر آپ نے بچوں میں یہ بتایا ہوا ہے, بچوں میں یہ چیز یہ ہیبٹ ڈیولپ کی ہوئی ہے, وہ سائلنٹ ریڈنگ کرے گا. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں
आप आराम से मैनेज कर सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मिस लुबना मीर, आपने जो हमारे लाइक टीचर्स यूज को इतना सारा ब्रीफली बिल्कुल डिफाइन करके बताया कि हाउ कैन दे अपनी जो है लाइक अपने अंदर क्या क्या स्किल्स पैदा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी पैदा कर सकते हैं जिससे वो स्टूडेंट को हैंडल कर सकें. सो मैक्सिमम 1 आवर हमें होना ही वाला है. 1 आवर हो चुका है, और क्योंकि हमारा ये स्पेशल शो था मिस लुबना मीर के साथ, ये व्यूअर्स से कह कि मिस लुबना वी के साथ हमारा इससे होता है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है इसमें, और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें लाइक सीखा होगा, इसको थोड़ा आपने एंजॉय भी किया होगा फॉर सम लाइक सिग्नल इश्यूज. सो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मिस लुबना मीर से हमने लाइक रब्ता किया, क्योंकि ऐसे लोगों से बहुत ही कम लोग मिल पाते हैं, और खुश नसीब लोग होते हैं वो जो इनसे मिल पाते हैं और इनसे सीख सकते हैं, इनसे सीख पाते हैं कि वो क्या क्या लाइक अपने अंदर क्या क्या तालीम का लाइक पहाड़ रखते हैं, उसको वो लाइक स्प्रेड करते हैं हमारे जैसे छोटे मोटे लाइक एंकर्स के साथ, हमारे जैसे छोटे छोटे स्ट्रीम यार्ड के इंटरव्यूअर के साथ आप लोग जो है आके इस तरह एक्सप्लोर करते हैं. सो आपके इस वीडियो को देख के बिल्कुल हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, जैसे कि हमारा पेज एक डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान का है. सो इस तरीके से हमें और लोग भी लाइक हमारे सिटीज के अलावा भी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, तो आपके व्यूज भी बहुत सारे देख रहे होंगे जो आपके चाहने वाले हैं. तो उनको आप लास्ट में एक पॉइंट, वैसे 1 आवर तो हो चुका है हमारा टाइम, तो बहुत ज्यादा चला गया, मगर लाइक के गेस्ट हैं तो उनको बिल्कुल उनका जो है ना सही से फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि देखें ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलते. हमारे व्यूअर्स बिल्कुल तंग आ गए होंगे, 1 आवर हो चुका है, क्योंकि ऐसे गेस्ट हमें दोबारा नहीं मिलेंगे. तो हम चाहते हैं कि नहीं, आप जो है थोड़ा ये बता दें. आप दोबारा बुलाएंगे, मैं दोबारा आ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपके जो है जैसे है थैंक यू कि सो अगर मच. अगर जो है वो टीचर्स हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऑनलाइन आकर आपको जो है इंटरव्यू या ये सेशन ऑनलाइन सेशंस में आपको लाइव सेशंस में कुछ बता सकती हूँ. तो डू कमेंट अस, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में भी आप जो कह लें, क्या लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में हम लिख देते हैं वाओ, वंडरफुल, व्हाट अ सेशन, गुड सेशन, बहुत अच्छी आपने बातें की, अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू सो मच. ये जरूर करें, ये अच्छा लगता है. मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं करें, ये करें, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से करने का तरीका ये है कि आप जो है अपने कंसर्न्स शो करें. आप बताएं कि आपके जो है ना ये इश्यूज हैं, तो इसको जो है ना मिस लुबना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आप इस तरह से ये जब करेंगे तो विद इन अ वीक अगर आपके कमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं तो जैन है वो बैठेंगे और इसको जो है ना लाइन अप करेंगे. उसमें जो मेन इश्यूज, अगर किसी ने 10 से 15 लोग एक ही इशू को जो है वो बार बार पूछ रहे हैं, तो उसको हम प्रोग्राम का टॉपिक बनाएंगे, उस टॉपिक को फिर लेकर हम आगे चलेंगे. इस तरह से होता है. अच्छा, अगर ये भी होता है कि टीचर्स के अलावा जो है वो स्कूल ऑनर्स के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, पेरेंट्स के भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज तीनों जगह पर है. तो मैं आपको कोई भी जिस हद तक हो सकता है हम एक दूसरे की ही हेल्प करेंगे. तो मैं यू आर ऑल वेलकम. आप आए, आप कमेंट्स करें, आप बताएं कि आपके क्या इश्यूज हैं, आप किस चीज पर जो है वो बात करना चाह रहे हैं. मैं जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा मैं करूंगी, क्योंकि इल्म जो है अगर हमने ये सिखाया है और सीखा है और सिखाया है कि बांटने से बढ़ता है, तो हमारे अमल से भी तो जाहिर होना चाहिए ना. तो मैं हाजिर हूँ जब भी आप इस तरह के वो आप कह लें कि आप टॉपिक रखें अपने अच्छा लोगों से पूछें. आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर उसमें टीचर्स हैं, उसमें पेरेंट्स हैं, उसमें स्कूल ऑनर्स हैं, और इसके अलावा भी जो कि स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आए, अपना वो कंसर्न शो करें. डेफिनेटली आई एम हियर, आई विल हेल्प यू. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. मिस लुबना मीर. मिस लुबना मीर, आपका बहुत ज्यादा मैं थैंक यू कहूंगा कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया, और आपने हमें इनकरेज किया, हमारे टीचर्स को इनकरेज किया कि किस तरीके से वो अपने लाइक अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.
अल्लाह हाफिज। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ गेस्ट थी मिस लुब्ना मीर, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से आप अपने अंदर स्किल्स पैदा कर सकते हैं। टीचर्स के लिए खास तौर पर उन्होंने कहा कि आप जो है क्या क्या स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं, कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को, अपने आने वाले फ्यूचर्स को किस तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं, संवार सकते हैं। सो अगर मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ताकि हमारे जो गेस्ट होंगे, जो हमारे गेस्ट आएंगे, वो आपके आंसर क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और आपको जो है अपने आंसर से वो आशना कर सके। सो थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा एक अच्छे गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।